طیارے نے سینٹرل ایشیا کی نوآزاد مسلم ریاست تاجکستان کے ایک چھوٹے سے سرحدی شہر مرغاب سے ٹیک آف کیا تھا۔ مرغاب کے ایک طرف چند میل کے فاصلے پر چین کی سرحد تھی اور جنوب میں 25,000 فٹ بلند پامیر کا پہاڑی سلسلہ تھا، جو پاکستان کی سرحد میں داخل ہو کر عظیم قراقرم کے سلسلہ کوہ سے جا ملتا تھا۔ مرغاب چاروں طرف سے برف پوش بلند پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہاں کوئی ہوائی اڈا نہیں تھا، اس لیے جہاز نے شہر سے کئی میل دور ایک پتھریلے میدان سے ٹیک آف کیا تھا۔ آدھی رات کے وقت گھمبیر تاریکی میں کسی ایسی جگہ سے جہاز اڑانے کی کوشش کرنا ہی خودکشی مترادف تھا، مگر جہاز کے پائلٹ کی مہارت کی داد دینی پڑتی ہے، جس نے نہ صرف کامیابی سے ٹیک آف کیا تھا بلکہ دونوں طرف بلند پہاڑوں کے درمیان بڑی کامیابی اور مہارت سے اسے اڑا بھی رہا تھا۔ مرغاب سے ٹیک آف کرنے والے اس جہاز کی منزل ہندوستان کے زیر تسلط کشمیر کا سونا مارگ نامی وہ قصبہ تھا، جو سطح سمندر سے تقریباً 16,000 فٹ کی بلندی پر واقع وولر جھیل کے مشرق میں تقریباً 100 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ دوسری طرف سری نگر سے اس قصبے کا فاصلہ صرف 52 میل تھا۔ ڈکوٹا سے ملتے جولتے طاقتور جیٹ انجن والے جہاز میں صرف 2 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، اور یہ دونوں سیٹیں کاکپٹ میں پائلٹ کی سیٹ کے عین عقب میں تھیں، جبکہ جہاز کا پچھلا حصہ کارگو کے لیے مخصوص تھا، اور اس وقت اس جہاز کے کارگو میں اسلحہ اور گولہ بارود کی پیٹیاں بھری ہوئی تھیں۔ جہاز کے ان 2 مسافروں میں ایک میں تھا شمروز اور دوسرا میرا ساتھی ترمیز۔ ہم دونوں کا تعلق اسی جنت نظیر خطے سے تھا جو پچھلے 50 برسوں سے بھارتی سامراج کے ظلم کی چکی میں پس رہا تھا۔ جہاز کا پائلٹ مسٹر سلوانو تالین تھا۔ اس کی عمر اگرچہ 30 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کی مہارت کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اسے خطرناک روڈز پر جہاز اڑانے کا خاصا تجربہ تھا۔ طیارہ تقریباً 30,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا پامیر کا سلسلہ کوہ پار کر کے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو گیا۔ بائیں طرف قراقرم کا برف پوش سلسلہ تھا۔ رات کی تاریکی کے باوجود سفید برف کسی اجلی چادر کی طرح چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پامیر کی برف پوش چوٹیاں پار کرتے ہی طیارہ بتدریج اپنی بلندی کم کرنے لگا۔ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد ہمارے طیارے کو غالباً کسی پاکستانی ریڈار پر دیکھ لیا گیا تھا۔ سگنل بھی موصول ہونے لگے۔ طیارے کی شناخت طلب کی جا رہی تھی، لیکن مسٹر سلوانو نے کوئی جواب دینے کی بجائے وائرلیس سسٹم ہی آف کر دیا۔ پرواز سے پہلے ہمیں بریفنگ دی گئی تھی اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ ہم کسی ریڈار کی زد میں تو آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں کسی قسم کے ہوائی یا زمینی حملے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ سیاچن کی طرف اگرچہ اینٹی ایئر کرافٹ گنیں نصب تھیں، لیکن انہیں استعمال کرنے کی بھی نوبت نہیں آئی تھی، اور پھر سیاچن سے ہم سینکڑوں میل دور تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی دستوں سے مجاہدین کی جنگ اگرچہ برسوں سے جاری تھی، مگر وہ زمینی اور چھاپہ مار جنگ تھی۔ بھارت نے مجاہدین کے خلاف ابھی تک فضائیہ استعمال نہیں کی تھی۔ مجاہدین کی طرف سے تو کسی فضائی کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور پھر پاکستان کو بھی اس طرف سے کسی فضائی در اندازی کا خطرہ نہیں تھا۔ اس طرف تاجکستان اور چین جیسے دوست ممالک کی سرحدیں ملتی تھیں، اس لیے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی جنگی جہاز اس طرف سے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو سکتا ہے۔ البتہ اس طرف آنے والا کوئی جہاز ریڈار کی آنکھ سے نہیں بچ سکتا تھا، اور ہمارے جہاز کو ریڈار پر دیکھ لیا گیا تھا، مگر پائلٹ نے ریڈیو کا رابطہ ہی ختم کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم تھوڑی دیر میں پاکستان کی فضائی حدود سے نکل کر بھارت کے زیر تسلط کشمیر کی فضائی حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ ہمارا جہاز 30,600 فٹ بلند نانگا پربت کی برف پوش چوٹیوں کے پہلو میں پرواز کرتا ہوا بتدریج اپنی بلندی کم کر رہا تھا، اور پھر دفتن جہاز کو زوردار جھٹکے لگنے لگے۔ ہمارا جہاز ایئر پاکٹ میں آ گیا تھا۔ جہاز خزاں رسیدہ پتے کی طرح فضا میں لڑکھڑا رہا تھا۔ ہوا کا زبردست دباؤ اسے کبھی ایک طرف دھکیل دیتا اور کبھی دوسری طرف۔ سلوانو اسے سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن جہاز اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔
हमारे दोनों तरफ बर्फपोश चट्टानें थीं और खतरा था कि जहाज किसी भी वक्त किसी चट्टान से टकरा कर तबाह हो जाएगा। सलवानू चीख चीख कर हमें मुख्तलिफ हिदायत दे रहा था। उसका एक हुक्म ये भी था कि हम जहाज से कूदने के लिए तैयार रहें। पैराशूट हमारे कंधों पर बंधे हुए थे, लेकिन मैं ये भी जानता था कि जहाज से छलांग लगाने के बाद भी हम जिंदा नहीं बच सकेंगे। या तो किसी चट्टान से टकरा कर हमारे टुकड़े हो जाएंगे या बर्फ में दफन हो जाएंगे। मुझे कई साल पहले इस इलाके पर परवाज करने वाले पाकिस्तान एयरलाइंस के एक मुसाफिर बरदार जहाज को पेश आने वाला हादसा याद आ गया। वो जहाज इन्हीं बर्फपोश पहाड़ों में गिरकर ऐसा लापता हुआ था कि आज तक ना उसका कुछ पता चला था और ना ही उसके मुसाफिरों का कोई सुराग मिला था। मैंने तरमीज की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और वो ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने भी दिल ही दिल में कलिमा पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे मौत का खौफ नहीं था, मैं मरने से नहीं डरता था, लेकिन ये सोचकर अफसोस जरूर हो रहा था कि अगर तैयारे को कोई हादसा पेश आ गया तो न सिर्फ हमारी कुर्बानी रायगा जाएगी, बल्कि वो मकसद भी पूरा नहीं होगा जिसके लिए हमने अपनी जानें खतरे में डाली थीं। मैं उठकर पायलट की सीट के पीछे खड़ा हो गया और दोनों हाथों से सीट को मजबूती से पकड़ लिया। हमारे नीचे दाएं बाएं और सामने बर्फ की सफेद चादर थी, जिसमें जगह जगह कोहान उभरे हुए नजर आ रहे थे। जहाज भी एक तरफ गोता लगाता और फिर दूसरी तरफ। सलवानू अब भी उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। जोरदार झटके लगने से जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी खौफनाक की आवाजें भी उभर रही थीं, जिन्हें सुनकर दिल दहल रहा था। लगता था जैसे हवा के शदीद दबाव से जहाज किसी भी वक्त टुकड़े टुकड़े होकर फिजा में बिखर जाएगा। तकरीबन 20 मिनट बाद जहाज हवा के इस तूफान से निकल आया। कुदरत की मेहरबानी और कुछ पायलट की महारत का कमाल था कि जहाज किसी हादसे से महफूज रहा था। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि मौत के जबड़ों से निकल आए थे। लेकिन सलवानू ने ये खौफनाक इंकिशाफ किया कि जहाज अपने असल रास्ते से भटक कर अपनी मंजिल से सैकड़ों मील दूर निकल गया था और अब उसका रुख सियाचिन की तरफ था। सलवानू ने फौरन ही जहाज को संभाल लिया और बतदरीज इसका रास्ता तब्दील करता रहा। लेकिन उससे पहले कि जहाज की परवाज हमवार होती, जहाज के पिछले हिस्से से एक खौफनाक आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो ऐसी ही आवाज थी जैसे किसी दरख्त की बहुत बड़ी शाख टूट रही हो। इस खौफनाक आवाज के साथ ही जहाज एक बार फिर लड़खड़ाने लगा। मेरा ख्याल था कि हम एक बार फिर किसी एयर पॉकेट में फंस गए हैं। सलवानू जहाज को संभालने की कोशिश करते हुए चीख रहा था, पीछे जाकर देखो, वहां कोई गड़बड़ हुई है। मैं अपने आप को संभालता हुआ तेजी से पीछे की तरफ दौड़ा और फिर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैं समझ रहा था कि हम हवा के उस तूफान से बच निकले हैं, मगर वो तूफान अपना काम कर गया। जहाज का पिछला दरवाजा टूटकर लटक रहा था और किसी भी वक्त गिर सकता था। टूटे हुए दरवाजे से अंदर आने वाली तूफानी हवा जहाज का तवाजुन बिगाड़ रही थी और जहाज को लगने वाले झटकों के साथ असलहे की भारी पेटियां भी इधर उधर लुढ़क रही थीं। जहाज तेजी से एक तरफ झुक रहा था। कड़क की वो खौफनाक आवाज एक बार फिर सुनाई दी और लटका हुआ दरवाजा जहाज से अलग होकर तारीकी में गायब हो गया। और फिर वो खौफनाक मंजर देखकर मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। असलहे की भारी पेटियां जहाज के पिछले हिस्से की तरफ फिसल रही थीं। जहाज का तवाजुन कुछ और बिगड़ गया। सारा बोझ पिछले हिस्से की तरफ आ रहा था, जिससे पिछला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता झुक रहा था और काकपट वाला हिस्सा बतदरीज ऊपर की तरफ उठ रहा था। मैं किसी न किसी तरह दौड़ता हुआ काकपट में पहुंच गया। मैंने चीख कर पायलट को बताया, जहाज का दरवाजा टूटकर गिर गया है और असलहे की पेटियां फिसलती हुई पीछे जा रही हैं। अब जहाज को बचाना मुमकिन नहीं। सलवानू ने भी चीख कर कहा, छलांग लगा दो हरी अप, वरना जहाज के साथ हम सब के भी टुकड़े हो जाएंगे। मैंने तरमीज की तरफ देखा, उसने असबात में सर हिला दिया और फिर हम दोनों तेजी से जहाज के पिछले हिस्से की तरफ लपके।
उस वक्त कड़कड़ाहट की जोरदार आवाज फिर सुनाई दी। दरवाजे के करीब जहाज का फर्श इस तरह टूट रहा था जैसे जलजले से जमीन फट रही हो। इस मर्तबा पीछे आते ही मेरी नजरों ने भांप लिया था कि असलहे की कई पेटियां गायब हो चुकी थीं, जबकि 2 पेटियां दरवाजे के बिल्कुल करीब पड़ी थीं। हम जहाज की साइड में लगे हुए राड को पकड़े आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ते रहे। जहाज को एक और झटका लगा और वो दोनों पेटियां दरवाजे से निकलकर तारीक खला में गायब हो गईं। मैं दरवाजे के करीब पहुंच चुका था, मुझे छलांग लगाने की जरूरत पेश नहीं आई। जैसे ही राड को छोड़ा, खुद बखुद फिसलता हुआ दरवाजे से बाहर गिरा और हवा में कलाबाजियां खाने लगा। उस वक्त जहाज तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर था। 2-2.5 हजार फीट तक तो मैं कलाबाजियां खाता रहा। मैं बड़ी तेजी से नीचे आ रहा था और ये सोचकर ही रूह फना हुई जा रही थी कि अगर पैराशूट ना खुला तो किसी चट्टान से टकराने के बाद मेरे जिस्म के कितने टुकड़े होंगे। मैंने दोनों टांगें समेटकर घुटने पेट से लगा लिए और टांगों को जोरदार झटका दिया। इस तरह में जैसे ही सीधा हुआ, मुझे एक जोरदार झटका लगा और मेरे गिरने की रफ्तार एकदम कम हो गई। पैराशूट खुल गया था। मैंने पैराशूट की रस्सियों को दोनों हाथों में थाम लिया। उस वक्त मेरी बुरी हालत थी और दिमाग में धमाके से हो रहे थे। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखने लगा। जहाज बहुत दूर एक पहाड़ी के पीछे गायब हो गया। चंद सेकंड उसकी आवाज फिजा में गूंजती रही, फिर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और इसके साथ ही पहाड़ी की दूसरी तरफ से आग का एक गोला सा उठता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ ही मेरे दिमाग में भी धमाके होने लगे और मैंने आंखें बंद कर लीं। चंद सेकंड बाद मैंने आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगा। हर तरफ तारीकी थी और मैं इस तारीक खला में मुअल्लक इधर उधर झूल रहा था। तेज हवा के झोंके मुझे कभी एक तरफ धकेल देते और कभी दूसरी तरफ। पैराशूट होने के बावजूद मेरी जिंदगी की कोई जमानत नहीं थी। ऐन तर मुमकिन था कि मैं तारीकी में किसी चट्टान से टकरा कर पाश पाश हो जाता। मैंने गर्दन झुकाकर नीचे देखा तो नीचे भी तारीकी थी, जिसका मतलब था कि ये बर्फानी इलाका नहीं था। नीचे कहीं बर्फ होती तो उसकी सफेदी जरूर नजर आती। तेज हवा के थपेड़े मुझे इधर उधर झला रहे थे और मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था। मैंने एक बार फिर आंखें बंद कर लीं और अपने आप को तकदीर के हवाले कर दिया और फिर दूसरे ही लम्हे मेरे जहन में तरमीज का ख्याल उभर आया। उसने मेरे पीछे ही जहाज से छलांग लगाई थी। तरमीज का ख्याल आते ही मैंने आंखें खोल दी और चारों तरफ देखने लगा। मेरे ख्याल में तरमीज को मेरे करबो जवार ही में कहीं होना चाहिए था, लेकिन गंभीर तारीकी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता है तेज हवा उसे उड़ाकर मुझसे दूर ले गई हो या उसका पैराशूट ही ना खुला हो। इस खौफनाक तस्वुर से मैं कांप उठा और अपने आप को तसल्ली देने लगा कि तरमीज का पैराशूट भी खुल गया होगा, वो भी मेरी तरह फिजा में तैर रहा होगा। वो मुझे दिखाई इसलिए नहीं दे रहा था कि हवा उसे उड़ाकर मुझसे दूर ले गई होगी। इस तारीकी में तो हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, वो मुझे कैसे नजर आता। मैंने पायलट सलवानू के बारे में भी सोचा, मगर वो तजुर्बाकार आदमी था। जहाज की सूरत-ए-हाल जानकर उसने हमें छलांग लगाने का मशवरा दिया था। वो खुद कैसे जहाज में रह सकता था। ऐन मुमकिन है जब हम जहाज के पिछले हिस्से की तरफ आ रहे थे तो उसने हमसे पहले ही काकपट वाले दरवाजे से छलांग लगा दी हो। तारीकी में इधर उधर देखते हुए मैं एकदम चौंक सा गया। दाएं तरफ नीचे बहुत दूर कुछ दिए टिमटिमाते हुए नजर आ रहे थे। पहले तो मैं उसे अपना वहम समझा, लेकिन नहीं, वो मेरा वहम नहीं था। वो कोई बस्ती थी जहां बिखरी हुई कुछ रोशनियां जगमगा रही थीं। फासिला बहुत ज्यादा होने की वजह से वो रोशनियां बहुत मध्यम दिखाई दे रही थी। मैं कुछ देर तक उन टिमटिमाती हुई रोशनियों को देखता रहा, फिर नीचे अपने अतराफ में देखने लगा। मैं जमीन के करीब पहुंच रहा था। तारीक चट्टानों के होलिये कुछ वाज़ेह हो रहे थे, जो बड़ी तेजी से करीब आ रहे थे, या मैं उनके करीब पहुंच रहा था।
मैं जिंदगी में पहली बार इस किस्म के तजर्बे से दो चार हुआ था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पैराशूट से छलांग लगाने के बाद जमीन पर किस तरह उतरा जाता है। एक मर्तबा एक अंग्रेजी फिल्म में एक जंगी जहाज के पायलट को उतरते देखा था। वो हवा के रुख पर उतरा था। उसका पैराशूट उससे आगे था। जमीन पर कदम रखते ही वो अपना तवाजुन बरकरार रखते हुए उस तरफ दौड़ा था जिस तरफ पैराशूट जमीन पर घिसट रहा था। लेकिन वो एक तजुर्बाकार पायलट था, उसे इस तरह उतरने की ट्रेनिंग दी गई थी। और फिर वो हमवार मैदान में उतरा था जहां उसे संभलने का मौका मिल गया था। लेकिन यहाँ सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ थी। मुझे ना तो कोई तजुर्बा था और ना ही मैं किसी हमवार मैदान में उतर रहा था। मेरे नीचे सरंगलाख चट्टानें थीं, जिनसे टकरा कर जिंदा बच जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे जिस्म के मसाम तेजी से पसीना उगलने लगे और मौत तेजी से करीब आ रही थी। और फिर दफतन वो हुआ जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। शायद मेरी दुआ कबूल हो गई थी। हवा का रुख बदल गया। पैराशूट अब चट्टानों की बजाय दाएं तरफ जा रहा था। उस तरफ टीलों की निस्बतन हमवार और ढलवान पहाड़ियां थीं, और वो रोशनियां भी किसी पहाड़ी के पीछे निगाहों से ओझल हो रही थीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।